कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बुरा नहीं होता है। लिपिड्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन जब ये लिपिड्स कंट्रोल से ज्यादा हो जाए तो ये हमारे हार्ट के लिए साइलेंट डेंजर बन जाता है। सो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्सेशन। आई एम योर होस्ट डॉक्टर चेतना और आज हम समझेंगे लिपिड्स का असली रोल, कि कौन से लिपिड्स हमारे हार्ट के दोस्त है और कौन से वाले दुश्मन। सो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, जॉइनिंग अस टुडे इज Dr. Anil Dhal. He is a renowned cardiologist and a senior professor in Delhi NCR. He holds an MBBS from AFMC Pune. He is an MD in General Medicine and a DM in Cardiology. He is honored with prestigious Presidential Sena Medal by the President of India. He specializes in interventional cardiology with over 40 years of experience in this field. So hello doctor, welcome to our show that is Beyond the Pill. And it's an absolute honor for us to have you with us today. It's a pleasure to be with such a charming person. Thank you for you. having me on your show. Thank you for getting the smile on my face. So, सबसे पहले तो जानते हैं कि why cardiology and how has your journey been in this field? Why cardiology? Yeah. Oh. उससे भी पहले why did you thought of becoming a doctor? That's a very difficult question, but we always wanted somehow to decrease suffering. लोगों की दुख यातना कम करने का प्रयास हर एक के मन में रहता है. And my grandfather was a doctor, so Grandfather. yeah, so Okay. एक तरह से और आपके जो ज़िंदगी में बहुत important influences आते हैं, तो people you look up to, some of them were doctors, so उनका यही करना है. हम and I went to the Armed Forces Medical College, which was some place where I wanted to go, and because I used to look up to some of the doctors who were smart young doctors from Armed Forces Medical College. And In your family? In my family as well as in my neighborhood, because Okay. I'm an army kid. So I grew up surrounded by people from the armed forces. So yes, I went to AFMC. I spent 25 years in the Indian Armed Forces. Wow. I've served in all kinds of different terrains. I've served overseas. I was with the United Nations. Then I realized that I needed to be a physician, got into medicine, got into cardiology. At that stage, cardiology was the creme de la creme. Sabse, shall I say, important or part of medicine. So only the so-called toppers used to get cardiology. Okay. So वहाँ से होते then I became professor of cardiology, and we had the privilege of starting some cardiology centers in the armed forces. And 2007, I took premature retirement from the army, settled down in Delhi, worked in some corporate and some teaching hospitals. यही हमारी छोटी सी जर्नी है, जो जहाँ तक हो सके हम अपना मैसेज लोगों को दे सकें और जिसकी हम मदद कर सकें, काम आ सकें, तो अच्छा है. सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की, यूजुअली जो डॉक्टर्स मतलब उनकी इमेज ऐसी होती है कि वेरी एकदम स्ट्रिक्ट टाइप्स, बट देन लुकिंग एट यू खड़ूस टाइप. नहीं, आई एम एक्यूज्ड ऑफ बीइंग खड़ूस. यू आर नॉट खड़ूस. नो, आई एम सेइंग लाइक, बट लुकिंग एट यू लाइक अ वेरी एंथू पर्सन एंड विद दिस ग्रेट एनर्जी अराउंड यू. सो yes, energy is important, positivity is important, और पॉजिटिव रहना डॉक्टर के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है. That's right. क्योंकि यू नीड टू कन्वे पॉजिटिविटी टू That's योर correct. पेशेंट्स. That's correct. पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं घबराए हुए होते हैं, एंड वी नीड टू गिव देम कॉन्फिडेंस दैट वी आर देयर फॉर देम. We don't always know what is happening to perfection, but we try to rally our knowledge, our experience, and our compassion and empathy for their care. सो व्हेन दिस पेशेंट्स कम टू यू, सो ज़्यादातर ये पेशेंट्स क्या बीमारी लेकर आते हैं या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं आपके पास? But that's a very interesting question. India is the world capital of diabetes and heart disease, जैसे कि आप जानते हैं. So heart disease has many different aspects to Right. it. I mean, you can have the most important
एलिफेंट इन द रूम जैसे कि कहते हैं, इज़ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, बिकॉज उससे हार्ट अटैक होते हैं, हार्ट अटैक होके हार्ट कमज़ोर हो जाते हैं, हार्ट फेलियर होते हैं, चंद लोगों को आकस्मिक मृत्यु होती है, किनकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, विच वी कॉल एबनॉर्मल रिदम्स। इसके अलावा वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, बिकॉज हमारी भी पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है Correct, मुल्क में। हाँ, तो हमारे पास सीनियर सिटीजन्स भी आने लग गए, उनके पास वैल्वुलर हार्ट डिजीज़। जब हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे तब ओनली हार्ट डिजीज़ वी सॉ वाज रूमेटिक हार्ट डिजीज़। Right, हाँ। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जिस दिन दिखता है तो हम सोचते हैं आज रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का मरीज़ देखा। बट इतनी ज़्यादा हमारी एक तरह से एथ्रोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क फैक्टर हैं, जिस प्रकार से hypertension, diabetes, smoking, physical inactivity, और and also cholesterol. तो इन सब से हमारी हृदय रोग बढ़ गई है। ऑल्सो पारिवारिक हिस्ट्री जो हिंदुस्तान में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कई चीज़ें प्रिज्यूम करते थे कि नहीं होती, क्योंकि जब हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे हमें बताया गया था कि ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ और जो कोलेस्ट्रॉल युक्त डिजीज़ होती हैं, दीज आर डिजीज़ ऑफ द एफ्लुएंट पॉपुलेशन। पर आज हमें पता है कि हर एक सोसाइटी के हर एक तबके में ये बीमारी है। इनफैक्ट द पुअर प्रॉब्ली हैव इट इवन मोर, बिकॉज दे प्रॉब्ली टेंड टू सेशिएट देमसेल्व्स। वो अपनी भूख मिटाते हैं बाय यूजिंग थिंग्स विच हैव गॉट मोर ट्रांस फैट्स। सो एंड दे ऑल्सो पार्टेक ऑफ लॉट ऑफ tobacco. So these are things which are bad. और हमारा जो एक तरह से जेनेटिक पूल है, जेनेटिक मिल्यू है, वो एक अपॉर्चुनिटी देता है इस डिजीज़ को हमें ज़्यादा तंग करने के लिए। सो वी सी अ लॉट ऑफ पीपल विद डिफरेंट हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीज़ के अगर आप लक्षण माने तो मात्र 5 लक्षण है, मात्र 5 लक्षण। यू कैन काउंट देम ऑन टिप ऑफ योर फिंगर्स, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना या छाती में दर्द। इट कैन बी एनीवेयर, जबड़े से लेके नाभि तक, दाएं बाएं। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर और हैवीनेस विच कम्स मोर विद एक्सर्शन। अगर वो बैठे बैठे हो, वी हैव टू वॉच कि क्या वो कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, बिकॉज यूजुअली अगर व्यक्ति 2 से 5 मिनट रेस्ट करे तो जो एंजाइना होती है वो हल्की हो जाती है। अगर नहीं हल्की हो रही तो शायद वो नाड़ी बंद हो रही है, इसलिए हो रहा है। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो हाफी हम कहते हैं। सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्सर्शनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हम मानेंगे, जिसको हार्ट फेलियर है, जिसको हृदय, एक हार्ट एक्चुअली एक पंप की तरह है। तो अगर वो कमज़ोर होता जाता है या उसमें फिलिंग में दुविधा होती है तो वो बैक प्रेशर मारता है इनटू दी लंग्स, और फिर हाफी आती है। तीसरी चीज़ है पैल्पिटेशन हम डिफाइन करते हैं अनकंफर्टेबल अवेयरनेस ऑफ योर ओन हार्ट बीट। हाँ, जैसे कि कोई जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, इम्तहान आता है या एंग्जाइटी होती है, जब पब्लिक अवेयरनेस करनी पड़ती है तो हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बहुत सुंदर व्यक्ति के सामने आप आते हो तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दोज काइंड ऑफ थिंग्स, दे आर पैल्पिटेशंस, बट दे कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मैलिटीज़ इन द हार्ट। हार्ट का अपना एक बिजली का सर्किट होता है, उसमें कभी कभी शॉर्ट सर्किट होती है, कभी कभी बाईपास ट्रैक्ट्स होते हैं। तो वो हमें दिल की धड़कन दे सकता है या दिल की धड़कन कम कर सकता है। किसी को डिजेनरेटिव कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है, फिर पेसमेकर की आवश्यकता होती है। तो ये 3 चीज़ें। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अनड्यू फटीग, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोरी है कि मेरे से काम नहीं होता। आई नो कि इन आवर हाउसेस दिस इज़ ऑलमोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड कि लोग कहते हैं मैं थक गया। बट जो व्यक्ति जो कि काम करने वाला व्यक्ति है, नॉर्मली काम करता है, नॉर्मल काम से कम काम में अनयूजुअल टायर्डनेस हो जाती है, तो उसको हमें एंड लास्टली बेहोशी आना, कोई चक्कर खा के गिर गया, जिसको हम सिंकपी कहते हैं। सो दीज आर 5 कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज। तो ये it is very easy to go. We know we have a set of risk factors for the most important heart disease, which is atherosclerotic cardiovascular disease. We have only 5 symptoms. अन्य भी heart diseases हैं। Some people have valvular heart disease. जैसे कि मैंने कहा, जैसे उम्र बढ़ रही है तो आप सुन रहे हैं बहुत लोगों को ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व चेंज हो रहे हैं, बिकॉज वो 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ज़्यादा होता है। इन एडिशन देयर कैन बी अदर valvular heart disease। जी। देन देयर आर सम हार्ट मसल डिजीज, जैसे कि
हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, जो हार्ट का मसल जो मोटा हो जाता है, तो देन देयर कैन बी जस्ट इलेक्ट्रिकल डिजीजेज. सो ऐसे कई डिजीजेज हैं, बट जो हम एक तरफ से मोटी मोटी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी चाहिए वो है एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज. राइट. सो आज की एपिसोड वही, मतलब टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लिपिड्स, और उसका जो कनेक्शन है हमारे हार्ट हेल्थ से. और यूजुअली लिपिड्स का अगर नाम लेते हैं तो लोगों के दिमाग में या सबके दिमाग में कोलेस्ट्रॉल ही आता है. एंड कोलेस्ट्रॉल से सबको यही लगता है कि उसका एक नेगेटिव रोल है बॉडी में. सो आज हम समझते हैं कि लिपिड्स एग्जैक्टली क्या होता है और इसका क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी में टू कीप आवर हार्ट हेल्दी. इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. ट्रिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि लिपिड्स आर इसेंशियल फॉर मेनी थिंग्स इन आवर बॉडी, एंड cholesterol is the building block of all steroid hormones. It is also very important कि हमारी जो nerves की covering होती है, brain की covering होती है, उसको उसमें लगने के लिए. But excess lipids जब होते हैं, they can get into the arterial wall. जो हमारी धमनी की जो wall होती है, उसके अंदर घुस के they can start an काइंड ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. और वो एक तरह से आप इमेजिन करें जिस प्रकार से एक ट्यूब के अंदर एक सिंगल फ्राइड एग है, तो वो मतलब थोड़ा भी छलनी हो जाएगा तो टूट जाएगा. तो उस प्रकार से ये कोलेस्ट्रॉल जब अत्यधिक हो जाता है वो बीमारी दे सकता है. तो कोलेस्ट्रॉल इज़ एक्चुअली अ बिल्डिंग ब्लॉक. अब मैं बैम्बूजल कर सकता हूँ आपको उसकी पूरी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल नाम से, साइक्लोपेंटानोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन, वो कोई मतलब नहीं रखता. 1918 में रशियन आर्मी के सर्जन जनरल थे निकोलाई निचकॉफ. उन्होंने सोचा कि क्यों कुछ लोगों को नाड़ियाँ ब्लॉक होती है, तो उन्होंने रैबिट्स लिए और उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको कोलेस्ट्रॉल का सेवन किया. उनको अंडे का पीला खूब खिलाया, so much so कि they overwhelmed उनकी metabolism, because this is going to disagree with what I'm going to say a little later if you ask me the right questions, of course, is that तो जब वो overwhelm हो गए तो ये रैबिट्स को उन्होंने sacrifice किया और देखा कि इनकी आर्टरीज जो हैं वो चोक थी एक वैक्सी सब्सटेंस से, and that waxy substance, yellow substance, was also cholesterol. So इस 1918 107 साल पहले लिपिड हाइपोथेसिस शुरू हुई. तब से बहुत इसके शैल से अप्स एंड डाउन्स हुए हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज बहुत सिंपल नहीं है ये कि मात्र ये खाने की बीमारी नहीं है. इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूँ कि ओनली 15 to 20% ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल कम्स फ्रॉम योर डाइट, तो आप सोचेंगे कि ये क्या कह रहा है. एक तरफ कह रहा है कि रैबिट्स को तो खिलाया था और बढ़ गया था, दूसरी तरफ कह रहा है कि 15 से 20% ही हमारा खुराक से आता है. जी हाँ, हमारी जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होती है या जो हम डिफरेंट लाइपोप्रोटीन्स उसके सब फ्रैक्शंस देखते हैं, इन सब का एक्चुअली लोकल उत्पादन होता है. they are also produced by the body themselves. Okay, so 15 or 20% comes from the food and rest of it is produced by the body. Absolutely. Okay, हाँ. तो जब LDL हम कहते हैं ना LDL बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बड़ा हुआ है, तो LDL बुरा कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना is not because किसी ने LDL ज़्यादा खाया है. It is you can cause that by overwhelming the system. But कोई ज़्यादातर हम लोग overwhelm नहीं करते. सो बहुत सारे लोगों को ये सवाल भी और कॉमन कन्फ्यूजन भी है कि ये LDL HDL क्या होता है और एक को बुरा और एक को अच्छा क्यों कहा जाता है. एक्चुअली ना हमारे एक तरह से प्राकृतिक नियम है कि हम किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं तो किसी को बुरा. तो ये एक सब फ्रैक्शंस हैं जो कि बाय वेट, जो कि जब इनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो अलग अलग सब फ्रैक्शन आते हैं. तो ये लाइपोप्रोटीन लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं. आज से 20-25 साल पहले ये धारणा थी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज गुड
बिकॉज HDL, HDL वो क्लीन करती है नाड़ी को. लो डेंसिटी इज बैड क्योंकि वो नाड़ी में इन्वेड करती है और कोलेस्ट्रॉल पहुंचाती है. Well, so this is true or not? I will say it has been modified because a lot of drugs were brought and lot of techniques were brought by which HDL was to be raised, and they all fell at the wayside because they did not succeed. So nothing to raise HDL has actually succeeded in decreasing coronary artery disease. Oh. So we also realized thereafter, after a lot of research, that HDL का नंबर या वेट इंपॉर्टेंट नहीं है. Okay. What is important is HDL की फंक्शनैलिटी. Correct. So HDL की फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई डायबिटिक है या कोई ओबीज है या कोई व्यक्ति है जो कि एक्सरसाइज नहीं करता है, उसका HDL अगर 50 है, it is may not be as efficient as somebody who's got an HDL of 35 but who has none of these risk factors. So somebody who's active. तो हम हमेशा अपने मरीजों को ये कहते हैं कि अगर आप वेट नॉर्मलाइज करेंगे, शुगर्स नॉर्मलाइज करेंगे और आप एक्टिविटी होगी तो उसी HDL से आपको ज़्यादा लाभ होगा, बिकॉज दैट इज द कॉन्सेप्ट. सो दैट्स व्हाई आई सेड आई विल मॉडिफाई इट अ लिटिल. आई वोंट चेंज इट. आई वोंट से इट इज यूजलेस. आई विल जस्ट से दैट वी नीड टू हैव मोर एफिशिएंट HDL. सो बेसिकली ऐसा है कि जो HDL है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है और जितना हम उसको यूज़ करेंगे उतना उसकी फंक्शन बेटर होती जाएगी. आउटसाइड ऑफ मिलान, ओके, इटली में, विच इज़ वन ऑफ द ब्लू जोन्स. ब्लू जोन्स आपको पता है ना, जहाँ पे लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं. तो वो इट इज़ कॉल्ड लेक है वहाँ पे, लिमनुसुल गारता. वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी जेनेटिकली उनकी HDL चाहे कम है बट सुपर एफिशिएंट है. वो HDL उनको 100-120 साल तक जीने की. और ऐसे क्यों है? ऐसा है बिकॉज वो HDL जेनेटिकली सुपर एफिशिएंट है. इनफैक्ट हम लोगों ने लेकर उसको दवाई के माध्यम से बनाकर लोगों ने उसको दे मैन्युफैक्चर्ड इट एंड ट्राइड टू यूज इट. अभी तक वो शोध चल रहा है. We are not there yet, but conceptually I want to tell you that HDL as a number is not as important as HDL as a function. Understood. I know this is a disruptive thought. ये लोग नहीं बात करते हैं normally, but LDL is the core. And LDL is the most important thing because यही LDL जब ऐसा एक ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये नाड़ियों के धमनियों की वॉल्स में घुस जाता है. और वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है और उसी से एथ्रोस्क्लेरोसिस होती है. एथ्रोस्क्लेरोसिस यानी जहाँ पे एथ्रो एक्चुअली 2 ग्रीक वर्ड्स हैं. स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग, एथ्रो मीन्स वैक्सी ग्रूअल. तो एक तरह से ये मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल घुस के उसको आपने, अगर LDL की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जी. पर LDL की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया मात्र 15 से 20% खुराक से आती है. रेस्ट बॉडी स्वयं जनरेट करती है. तो LDL जब ज़्यादा होता है, हमारा आज से 10, 15, 20 साल पहले ये ख्याल था कि इसको हम कैसे कम करें. लोगों ने पहले स्टार्ट किया दवाइयाँ देने जो कि LDL की मतलब एब्जॉर्ब होना बंद करें, बिकॉज हर एक कोई सोचता था ये सब खुराक से आता है. बट वो फेल हो गई. फिर फाइनली एक जापानीज थे अकीरो एंडो, उन्होंने देखा कि ये कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप होती है कोलेस्ट्रॉल की, उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं. तो स्टैटिन्स तब से हम यूज़ करना शुरू किए. उसके बाद 1984 में 2 अमेरिकन साइंटिस्ट है, गोल्डस्टीन और ब्राउन, उनको नोबेल प्राइज़ मिला LDL रिसेप्टर. बिकॉज ये LDL बाई इट सेल्फ इज ऑल्सो नॉट एज इम्पॉर्टेंट. जो हम एलिवेटेड LDL की बात करते हैं, इट इज़ नॉट increased LDL consumption or production, it is actually inability of the liver to clear this LDL. yes. वो एक रिसेप्टर होता है, वो अपने अंदर खींच लेता है LDL को सेल के अंदर और उसको बाइल एसिड में प्रोड्यूस करके उसको एक्सक्रीट कर देता है. अगर हम अपनी खुराक में माने हम अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर दें तो क्या होगा, ये भी कम हो जाएंगे. इसको डाउन रेगुलेशन कहते हैं. और क्योंकि ये डाउन रेगुलेट हो जाएंगे तो हमारी क्लियरेंस उतनी कम हो जाएगी. तभी या तो हम रेट लिमिटिंग स्टेप पे अटैक करें, विच इज जैसे कि हम स्टैटिन्स, बिकॉज वो रेट लिमिटिंग स्टेप है, उससे कोलेस्ट्रॉल के LDL के रिसेप्टर्स कम नहीं होते. दूसरा हम कर सकते हैं कि LDL की रिसेप्टर्स का अपना जो एक साइकिल होता है कि ये भी डिजेनरेट करते हैं,
उनको या तो इंक्रीज करें ताकि जितने ज़्यादा रिसेप्टर होंगे उतना ज़्यादा हमारा चुंबक की तरह एलडीएल सेल के अंदर खिंचाएगा। हाँ। तो ये अब नई जो सोच है, इससे नए नए दवाइयाँ, नए नए पदार्थ, नई नई थिंकिंग डेवलप हुई है। आई नो दिस इज अ लिटिल मच फॉर अ कॉमन पर्सन yes. और समबडी हु इज नॉट Yes. इनटू दिस फील्ड, Yes, right. बट हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एलडीएल इज द कोर, एंड एलडीएल को कम करने के जो हमें तरीके ढूंढने हैं उसमें खुराक एक छोटा चीज़ है, बिकॉज 15 से 20%। कुछ दवाइयाँ हैं जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप्स जैसे हमने कहा उन पे स्टैटिन्स काम करते हैं, और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि एलडीएल के रिसेप्टर बढ़ा देते हैं या उनको टूटने से रोक लेते हैं। Okay. और वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आजकल आपको पता है कि लोगों नई दवाइयों की जो प्रोडक्शन हो रही है बहुत तेज़ हो गई है, क्योंकि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आ गई है, Yes. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आ गई हैं, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस आ गए, हर रोज़ कोई नई दवाइयाँ आ रही हैं। अब ये दवाइयाँ they have to be proved to be effective, Right. they have to be proved to be safe, and there has to be good return on investment. ऐसा नहीं हो सकता ना बहुत महंगी दवाई दे दें और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये साबित करने के लिए बहुत शोध चल रहा है। अब एलडीएल की भी आगे हमें समझना है कि कुछ चीज़ें एलडीएल को एम्पलीफाई करती हैं, और 1963 में केयरबर्ग ने डिस्क्राइब किया था एक छोटी सी चीज़ कॉल्ड लाइपोप्रोटीन लिटिल ए। आज तक हम कुछ साल पहले अगर लैब्स में बोलते थे लाइपोप्रोटीन लिटिल ए की मात्रा कर दो तो वो करते ही नहीं थे, समझ ही नहीं आती थी उनको। बट टुडे वी आर रियलाइजिंग ये एक एलडीएल का एम्पलीफायर है। जो एलडीएल अगर बॉम्ब है तो ये उसका सुपर बॉम्ब है, और बिकॉज 6 गुना ज़्यादा एपोबी कम्स इन दी लाइपोप्रोटीन लिटिल ए। तो अब हमें क्या करना होता है कि हमें डिटरमिन करना होता है एलडीएल, और हम साथ साथ ये भी डिटरमिन करते हैं कि उसका लाइपोप्रोटीन लिटिल ए कैसा है, बिकॉज जिसका लाइपोप्रोटीन लिटिल ए बहुत ज़्यादा है, हम इस सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं उनका एलडीएल कम करने के, क्योंकि अभी तक हमारे पास लाइपोप्रोटीन लिटिल ए कम करने की दवाइयाँ नहीं हैं। एग्जैक्टली वही मुझे एक आध साल में आने वाली हैं, कुछ शोध चल पड़े हैं, कुछ दवाइयाँ दे आर जस्ट नॉकिंग ऑन द डोर, एंड वंस दे कम वी विल ऑल्सो नीड टू प्रूव दैट दे बेनिफिट अस, because we know statins benefit us, we know definitely LDL reduction benefits us. So जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 15-20% ही डाइट से आता है, तो अगर किसी इंसान को अपना लिपिड लेवल या लिपिड प्रोफाइल इम्प्रूव करनी है तो क्या वो बेटर डाइट फॉलो करके नहीं कर सकता है ये? हाँ मैडम, आपने बड़ा एक वही सवाल पूछा जो कि हर रोज़ देखिए नेसेयर्स सोशल मीडिया के जनरेटेड और गूगल और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एंड फेसबुक के जनरेटेड बहुत है। तो आप स्टैटिन्स प्रिस्क्राइब करते हो तो पेशेंट आके बोलता है नहीं डॉक्टर साहब स्टैटिन मत दीजिए, मैं अपने आप डाइट से कम। भाई अगर आपकी खुराक मात्र 15 से 20% कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, आप कितना कम कर देंगे? जब आपको ये बीमारी दे रही है तो हमारे पास, और ये एक घातक बीमारी है, इट इज़ नॉट अ समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन लाइटली। तो मेरा एक जनरल फार्मूला है, आई डू नॉट नो इफ इट इज़ राइट टू अप्लाई इट, बट उचित आहार, डोंट इग्नोर आहार। हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई बात नहीं आपका कोलेस्ट्रॉल है, आप बैठिए सारे रेड मीट्स एंड चना भटूरा एंड ऑल द थिंग्स यू नो फ्राइड फूड वो खाइए। मैं इसमें एक चीज़ जरूर बोलूँगा, ट्रांस फैट्स आर वेरी बैड। तो जो दोबारा तले तेल का खाना होता है वो जरूर बहुत ख़राब है, बट जो मोस्ट ऑफ द पीपल ईट ऑर्डिनरी फूड, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट देयर हु आर ईटिंग, ग्लटन्स नहीं है। मतलब ना हम, जैसे कहा जाता है कि ना हम इंसान भगवान है ना हम हैवान है, हम मात्र इंसान हैं। सो वी ईट ऑर्डिनरी फूड, एंड विद दैट ऑर्डिनरी फूड वी शुड मेक श्योर दैट yes we limit some things, don't overwhelm the system, but don't think that just by controlling that आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल में या आपके रिस्क फैक्टर प्रोफाइलिंग में। Okay. तो उचित आहार, उचित व्यवहार इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कि रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं ना, they multiply their effect, they don't add their effect. कोई स्मोकर है, tobacco in any form, no Indian can afford to use tobacco in any form at any time. मतलब ये हमें, because हमारा it is a complete no. तो ये चीज़ें हमें completely ध्यान देना है। Then uncontrolled diabetes,
Yes. किसी का शुगर बहुत हाई है, किसी का अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर. दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच नीड टू बी असेस्ड. एंड ऑफ कोर्स रीजनेबल फिजिकल एक्टिविटी. अब हम वो तो नहीं कह सकते कि पोल्यूशन कम कर दीजिए या भोजन सारा ऑर्गेनिक कर दीजिए. वो तो कोई नहीं कह सकता, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी. वी कांट इवन फैक्टर स्ट्रेस, बिकॉज अगर प्लेस ए टू प्लेस बी जाना है और 1.5 घंटा गाड़ी के अंदर बैठना है, तो आप गाड़ी को अंदर से धक्का देंगे तो वो ज़्यादा तेज़ तो जाएगी नहीं. सो इट इज़, दोज आर थिंग्स विच यू कैन नॉट चेंज, बट देर आर थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल. सो उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार. हम द लाइफ इज स्ट्रेसफुल, बट हम अपने आप को इंसुलेट कर सकते हैं ना. हम सोच सकते हैं कि हम शांत रहें, एंड everybody has their own means of combating stress. कोई गेम्स खेलता है, कोई सुडोकू करता है, कोई माला जपता है, कोई ओवर ईटिंग करता है. ओवर ईटिंग कैन बी अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. लोग कंफर्ट ईटिंग करते हैं, विच इज नॉट गुड. तो उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित आहार व्यवहार विचार, एंड समय अनुसार उचित उपचार. That's important. That is very important. Yes. Because seconds save lives. That's अगर true. किसी को हार्ट अटैक के लक्षण हो रहे हैं, Yes. if we delay every passing minute, we are losing more heart muscle cells. So we must recognize symptoms and we must not delay treatment. अगर हमें करना है कि परसों कोई व्यक्ति आया हमारे पास दिखाने के लिए, बोला कि जी मैं बिहार से आया हूँ, ही हैड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक ऑन हिज ECG. तो मैं देख के मैं खड़ा हो गया. मैंने कहा भाई हार्ट रेट 25 है, आपको तो तुरंत अस्पताल, हम वो पेसमेकर नहीं लगवाएंगे. मैंने कहा आप कैसे नहीं लगवाएंगे, ये आपका लाइफ सेवर है. सो पीपल टेंड टू डिले दिस. वो 10 लोगों से पूछते हैं, वो 10 लोगों से, ये चिंतन नहीं करना चाहिए. जो उचित है वो हमें करना चाहिए. तो उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार, समय अनुसार उचित उपचार, तो शायद नहीं पड़ेंगे हम बीमार. ब्यूटिफुल मैसेज. दिस इज. सो जैसे भी हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे किसी को पता चले कि ओके मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अब बढ़ रहे हैं, इसीलिए माय बॉडी इज़ ट्राइंग टू शो सच साइंस एंड सिम्टम्स, या फिर दैट पीपल शुड बी अवेयर कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो पॉसिबिलिटी है कि बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल, विच दे शुड नोटिस. ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मेजरमेंट करने पर ही पता चलती है. सो यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स? नो, यू कैन हैव. ऐसा नहीं है. अगर किसी को एंजाइना हो रहा है, या किसी को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, या किसी को स्ट्रोक की या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक ब्रेन के हुए हैं, तो दे कैन बी रिलेटेड कि नाड़ियाँ बंद हो रही हैं अब. बट एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति को ढूंढना जिसमें कोई अभी तक ये मेजर लक्षण नहीं हुए हैं, उसमें छोटे लक्षण ढूंढना, तो कई बार हम कहते हैं कि आंख में कलर चेंज हो जाना, कुछ टेंडन्स पे कुछ जमावट हो जाना, ज़ैंथोमा, ज़ैंथीलास्मा हम इनको कहते हैं. बट दीज आर फ्यू एंड फार बिटवीन. आई हैव आल्सो सीन दैट जो हाथ के बिल्कुल दे लुक येलो. या जी, बट वो तब होता है जबकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा, एक तरह से हम उसको फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया कहते हैं, उसमें हमें बॉदर करता है. बट जो रोज़मर्रा के लोग हैं, आप और मैं और कोई और, हमें शायद मेजरमेंट कराना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ना कि इनको देखना, बिकॉज इनको देखते देखते काफ़ी देर हो जाएगी. दैट इज़ ट्रू. तो ऐसा कोई इंसान है जो प्रॉपरली अपना एक्सरसाइज भी कर रहा है, अपने डाइट पे भी कंट्रोल है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल होने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, बिकॉज ये सब जेनेटिकली ऑर्डेन्ड है ना. कुछ हर एक की मेटाबॉलिज्म अलग है. एक व्यक्ति अपने आप से वो प्रयत्न कर सकता है, बट कई बार हमें कुछ मदद करने की आवश्यकता होती है. इसके लिए दवाइयाँ हैं, इसके लिए उपचार हैं. ये हमें दवाइयाँ टाइम टू टाइम इनिशिएट करनी पड़ती हैं. Correct. और इनका रिजल्ट देखना पड़ता है. तो पहले तो हम लोग सिर्फ लेवल्स पे जाते थे. अब हम समझ गए हैं कि लेवल्स भी डिफरेंट रिस्क पे डिफरेंट लेवल्स इम्पॉर्टेंट है. मतलब हर किसी के लिए अलग अलग कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स देखे जाते हैं. जी, बिकॉज अगर बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि रिस्क फैक्टर्स हैं, तो अब रिस्क फैक्टर्स का समझ लीजिए कि रिस्क फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते. क्या है? फैमिली हिस्ट्री आप तब्दील नहीं कर सकते. अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री तो है. दूसरी चीज़, आप जेंडर, फीमेल्स इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर
protected to some extent, unless if they smoke or they are diabetic or they use oral contraception or they have very strong family history. Right. And आजकल एक नया emerging, Go Red for Women month है, तो must realize bad obstetric history is also a risk factor for heart disease. Okay. So pregnancy-induced high blood pressure, gestational diabetes are also risk factors. So we must keep that in mind. Okay. I've just mentioned it here because we were discussing Yes, females. that's true. And lipoprotein little a, because right now we don't have drugs. These are things which we cannot change. But there are so many things which we can Right, change. right. Let us stop tobacco. Let us stop tobacco everywhere. If I tell my patients also, I tell myself, if I can make one person give up tobacco, it is my good deed for the day. Because tobacco kills at both ends. That's No true. Indian can afford to use tobacco in any form. Let's control blood pressure. Blood pressure is a silent killer. So it needs to be measured. Then only you will be able to control it. Okay, Right. you will not, if you don't measure it, ये नहीं होता कि वो बॉलीवुड में होता है कि सिर दर्द होता है या गुस्सा आता है, आंखें लाल होती हैं. Normally, those all increase blood pressure, not blood pressure causes them. Right. So third is sugar. We are the world capital of diabetes. आप देखें कि if you take the Indian population, high blood pressure की prevalence urban India में तकरीबन 40% है. अर्बन एडल्ट्स में 40%. Oh my God. इट इज ह्यूज. Yes. 10% अर्बन इंडिया में लोग डायबिटिक हैं. My और जो God. डायबिटिक नहीं भी हैं, वी बिहेव लाइक डायबिटिक्स बिकॉज एंड इंडिया इज, हमारी जो डाइट है ना, इट्स वेरी कार्बोहाइड्रेट रिच. That's true, सो that's वी नीड टू ऑल्सो कट अवर कार्ब्स इन आवर डाइट व्हेनेवर, बिकॉज बहुत देर तक हम लोग फैट्स अटैक करते रहे. बट वी नीड टू ऑल्सो मॉड्यूलेट कार्ब्स इन आवर डाइट. वी नीड टू मॉड्यूलेट सॉल्ट इन आवर डाइट. वी आर, हम चटोरे हैं, हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं. सो वी नीड टू मॉडिफाई दैट, बिकॉज इससे हमारी डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन कम होगी. That's Then comes to physical inactivity and obesity. Obesity is a That a is growing true. Of field. course, of And हम अगर बाहर जाएं, लोग जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं पर फिर जाते नहीं हैं. That's like in every year January 1 का resolution, I'm going to start gymming. एब्सोल्युटली. वो मेरे को किसी ने आके पूछा जस्ट लास्ट वीक के मैंने ना एक ट्रेडमिल घर के लिए ले ली. मैंने कहा कंग्रेचुलेशन. तो आई आस्क्ड द स्पाउस, आई विल नॉट नेम विच जेंडर, आई सेड उसका क्या यूज़ हो रहा है अभी? कहते बहुत अच्छा टॉवल हैंगर बन गया. सो दिस इज हाउ वी नीड टू इनकलकेट. आजकल एक नया फैड है, सबके पास घड़ियाँ हैं, स्मार्ट वॉचेस. एवरीबडी सेज मैं 10,000 स्टेप्स कर लिए, मैंने 6,000 स्टेप्स कर लिए. जी हाँ, अच्छा है, आपको मोटिवेशन मिलती है. बट एक टहल के भी हो सकता है, एक मार्केट में आप टहल के भी स्टेप्स कर रहे हैं, और एक एग्रेसिवली लाइक एन एक्सरसाइज हमें करना है. एक्सरसाइज के भी कुछ रूल्स हैं. वी मस्ट हैव एडिक्वेट hydration, we must have very good footwear, we must have good warm up, and we must do enough physical activity ताकि हमें कहते हैं एज प्रिडिक्टेड मैक्सिमम हार्ट रेट. अब क्या है एज प्रिडिक्ट? 220 लेस एज. सपोज आई एम 63, तो मतलब आप इमेजिन करें उसका हम 2/3 अचीव करना चाहिए. तो ऑफ एज प्रिडिक्टेड मैक्सिमम उतनी अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, एंड ऑलवेज स्टार्ट लो, गो स्लो. You don't have to, you can't run a marathon. और प्लीज जो लोग ये सुन रहे हैं और जिम ज्वाइन करते हैं, गुड लक टू यू. जिम में देखिए कि जिम इंस्ट्रक्टर ने आपका इवैल्यूएशन किया है. वी डोंट वांट व्हाट हैपेंड टू some people in gyms to happen to you. So the gym should have a automatic external defibrillator. कि अगर Raju Srivastava's unfortunate event happened in a gym which was less than 500 meters from All India Institute of Medical Sciences. So unfortunately it led to a bad outcome. So we must be careful, and please, nutritional advice में don't take too many supplements without checking them out with your doctor. Yeah. That is my humble suggestion to those who. So अगर हम इन risk factors को देखें, these risk factors, ये एक तरह से when 1 + 1 होता है ना, वो 2 नहीं होता, वो शायद 11 हो जाता है. नो दैट्स बैड मैथ्स. बट वो ये मल्टीप्लाई. तो और ये जैसे जैसे हमारी रिस्क बढ़ती जाती है, एंड ये एक तरह से दे आर लाइक बैड न्यूज़ ना, वो साथ साथ चलती है. दे आर अगर एक है तो दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है. सो वन हैज़ टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. And these are people in whom we need to do lot of proactive
डिजीज फाइंडिंग, ताकि बीमारी होने से पहले पता चले। हम उसको तो उसमें मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ऐसे लोगों में मॉनिटरिंग कब से, मतलब स्क्रीनिंग कब से चालू कर देनी देखिए, चाहिए? आइडियली अपना रिस्क समझ के हमें स्क्रीनिंग पोटेंशियल, हम प्रपोजल करते हैं हमेशा कि स्कूल लेवल पे हमें स्क्रीनिंग करनी क्योंकि चाहिए. जब तक कोई सिम्टम आता नहीं तब तक कोई जाता ही नहीं It is है। also very difficult to convince people to take treatment for something for which they don't have symptoms. आप ये समझिए. Exactly, Because yeah, वो कहेंगे वो भी जब है। बुखार है तो गोली ले लेंगे. हाँ। बट अगर आप बोलो कि भाई आपका सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उसको कोई, इनफैक्ट पीपल यूज टू फील वर्स. आजकल तो दवाइयाँ बहुत इंप्रूव हो गई हैं, बट दे यूज टू फील वर्स आफ्टर द ट्रीटमेंट फॉर हाई ब्लड प्रेशर वाज गिवन देन अदरवाइज. बट वी नीड टू गेट दिस मेजर्ड. We need to start this effort at school level. We need to do it periodically. Har office, every good organization should do periodic documentation of these some parameters. बहुत ज़्यादा इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, because एक तरह से population को देखना है. तो अगर हम अपना हम इनको कहते हैं social determinants of health. अगर हम इनको पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट करें, giving up tobacco, making sure people use the staircase rather than the elevator, people walk, people are encouraged to do more physical activity, people जो खुराक है उसमें जहाँ तक हो सके, देखिए हलवाई के दुकान से जो आप लेते हैं उसमें कोई लेबल तो होता नहीं कि कितना ट्रांस फैट है. एग्जैक्टली. आजकल तो ये ट्रांस फैट और अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट से इतना चल रहा है. तो ऐसा है मैडम, देखिए, पर आधे लोगों को पता भी नहीं है कि ये होता आप क्या है. देखें कि जो भी सैचुरेटेड फैट्स हैं, दे आर एटलीस्ट 1 ग्राम 9 कैलोरी देता है. पर ये होता क्या है सिंपल टर्म्स में? देखिए, जो फैट्स को अगर हम देखें कि इंडियन कुकिंग जो है ना, इज़ अ हाई टेम्परेचर कुकिंग. अगर हम आप जाती हैं किचन में? जी. so it is a high temperature cooking, and high temperature में smoke आता है. राइट. So probably a good cooking medium for Indian cooking was there. That's why it was clarified butter or ghee. You know that is, but वो महंगा था. तो कोई 100 साल पहले कंपनीज ने सोचा कि वेजिटेबल ऑयल्स को लेकर उनको हाइड्रोजनेट कर देते हैं. ओके. तो अब मैं नाम लूँगा तो दे आर नाउ ऑलमोस्ट पास्ट टेंस, बट डालडा, रथ वगैरह आए विच वर हाइड्रोजनेटेड vegetable oils, or they looked and felt and tasted like ghee. You can dispute that. They were a cheaper alternative. Yes. But what they contained was a lot of trans fats. Okay. So they actually damaged a lot of people. Okay. अब खैर हम उससे कम हो गए. उसके बाद एक तरह से प्रथा चली कि हम सीड ऑयल्स ही लेते हैं, बिकॉज घी बिकेम वेरी एक्सपेंसिव. दूसरी चीज़ है कि लोगों को मन में था कि घी बहुत ज़्यादा लोग लेते थे. मात्रा हमें कम रखनी है. हमारी बेसिक कुकिंग शुड नॉट बी इन डीप फ्राइड. यू नो, इट कैन बी सॉटे और स्टीम्ड और दोज थिंग्स कैन बी यूज. तो अब जब ये सीड ऑयल्स यूज़ होने लग गए तो फिर शुरू में तो लोगों ने कहा कि ये मोनो अनसैचुरेटेड है, बिकॉज कुछ डिटेल्स आए यूरोप से कि जो मेडिटेरेनियन फूड है जिसमें ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, विच इज़ रीजनेबली हेल्दी. प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन कुकिंग में अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे वो एक तरह से फट जाता है, एंड It is also expensive. It is rather expensive. So you can add a drop or two of olive oil for flavor, but rather than thinking of cooking. Biggest problem which we have, and for the common person in the streets, is सुबह का समोसा is not as tasty as शाम का समोसा, because शाम का समोसा उसी तेल में बार बार तल के वो और ज़्यादा क्रिस्प हो जाता है, and that is like a bomb. Yes, because it contains trans fats. Yes. So therefore you have to be very, very wary of it. So these are all saturated fats. Now they can be mono unsaturated or poly unsaturated, and I don't want to confuse people, but अगर सीड ऑयल यूज़ करना है आपको तो जितना कोल्ड प्रेस्ड होगा वो ठीक रहेगा. आई अंडरस्टैंड कि कुछ हमें अपनी खुराक बदली करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, घर में करेले शौक से बनते हैं या कटहल शौक से बनते हैं, बट दीज आर थिंग्स जो कि तेल पी जाता है. Yes. And They're stuffed with oil. They're stuffed with oil. So we need to decrease that, but at the same time
don't think that just because you've decreased that, your cholesterol is going to drop, as I've explained. So medicine and diet goes hand in hand. Hand in hand, Yeah. absolutely. So, yes, as far as meats is concerned, we try to avoid red meats. White meats are reasonably okay, because it is not just cholesterol. देखिए, fats 1 gram will cause 9 calories. तो अगर आप उतनी मात्रा में फैट्स या प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स गिव 4 कैलोरीज, तो आपका मोटापा तो हो ही जाएगा ना. So therefore that is because मोटापा is about calorie balance. So we need to be careful about what we eat. Okay. So जैसे कि अभी ये भी बहुत बड़ा मिथ है या फैक्ट मुझे पता नहीं, बट देन अल्कोहल विच इज़ एंड इट्स रिलेशन टू कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही ट्रिकी मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं? क्वेश्चन है. Can I give a disclaimer? Yeah. I'm a teetotaler. Being a Fauji, it becomes a little difficult for people to accept that, but I'm a teetotaler. And my father spent 45 years in the army also, and he's a teetotaler too. So really, my answer is going to be a little biased from those people who enjoy their drink. No, So, मतलब ये है ना कि 2024 World Heart Federation, 2023 World Heart Federation took out a campaign that even a drop of alcohol is bad for you, is bad for your heart. So हम उससे पहले क्या था कि because of this Mediterranean concept कि भाई Mediterranean food, Mediterranean wine, yes, red wine red is wine. good for heart health. So it used to be thought so. But it also contains calories. Yes, it contains some substances like resveratrol hai, that is part of the red wine. That can be beneficial. But Indians are hardly wine drinkers. Indians drink hard liquor. And therefore, I would urge people, and also it raises triglycerides. It will not decrease your LDL level. It will increase your risk factors. Sometimes people who do binge drinking on weekends get abnormal heart rhythms. We call it holiday heart syndrome. So these are things by which I just say that if you have to take alcohol, believe in extreme moderation. In fact, I believe that Gautam Buddha's words when he said that the middle path is very important, because make sure that you take that much that you're enjoying it, not that the alcohol starts enjoying you. That's true. Because if you think you're smoking a cigarette, you're wrong. The cigarette is smoking you. Exactly. So maybe if you have 30 ml once or twice a week, it's okay. It's not that I'm saying that I have something. I don't have a high moral ground against it. But I feel that much does not affect you unless if you have very high triglycerides and you want them to be lowered. Okay. But alcohol is not as dangerous as, say, tobacco. And smoking, Yeah, obviously. so tobacco. हाँ, मतलब वही अल्कोहल में आप खुद पी रहे हो, स्मोकिंग में आप दूसरे को भी मार रहे हो और खुद भी That's मर right. रहे हो. It kills at both ends. Yes, It kills at both ends. that's true. तो स्मोकिंग आज के टाइम में आई थिंक इवन द यंगस्टर्स आर Madam, there is a increase in our female smokers. फीमेल स्मोकर्स एंड And youngsters, if you go to any call center office and you see the smoking room, it is full, and Yes. there's so I think this is where we have failed to educate our people. That's right. Because, I promised you in the beginning that I might quote from Hindi poetry. So Jayashankar Prasad wrote many years ago in Kamayani, he said, यही त्रिपुर है, यही त्रिपुर है, देखा तुमने 3 बिंदु ज्योतिर्मय इतने. क्या है 3 बिंदु? ज्ञान दूर, आपको ज्ञान है, पर ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की. Wow. So really we understand. Everybody knows Yes. nobody should smoke. Yes, everyone. Yet everybody goes. I was coming here. I found that the most densely populated place were the smoking kiosks, where people were trying to light up before they started their day. So I actually noticed it. I said, ये कहाँ पर है? यहाँ पे कोई खाना बिक रहा है? क्या हो रहा है? They were actually smoking tobacco shops. So it is we हमें ज्ञान है. It is bad for us. It kills on both ends. But yet we do it. हमारी क्रिया अलग है. तो इच्छा जो कि गुड हेल्थ की इच्छा है वो कैसे पूरी हो?
You know, these people say that my stomach doesn't get cleared if I don't smoke. Well, I think drink more water, eat more Yeah. fiber, do more exercise, and it'll get your stomach cleared as well. That's right. That's right. I mean, I don't think कि कोई छोड़ने वाला है वो. It has become very addictive. No, we can. Madam, tobacco is more addictive than anything else. It is very difficult for us to get people to get off tobacco. In fact, जो लोग आके बोलते हैं मैं पहले 40 पीता था, अब मैंने डॉक्टर साहब कम कर दिए 5 पीता हूँ. मैं कहा you'll be back at 40 because it has got that kind of. You're not smoking that cigarette. That cigarette is smoking you. But then they have this reason कि मुझे इतना stress है, इसीलिए मैं smoke कर रहा हूँ. So this is the only way we can counter that is by programs like yours, wherein we can educate yes. people, and we should start from school, wherein the children start telling the parents that they should not be smoking, and that the children make sure that they stay away from tobacco, because That's at least the next generation should That's have a right. That's generational right. change. So you think because of this stress, I mean, ये सब चीज़ें, it's a vicious cycle, stress, alcohol, smoking and everything. ये जो stress है, इससे भी cholesterol levels बढ़ सकते हैं. Yes, it is possible, but stress itself can cause so many other things. We all, and you can't separate one from the other. कोई कहे कि आप यहाँ पर you're existing in this city, and you're taking 2 hours to travel from a place A to place B, where you used to reach in 10 minutes or 15 minutes. Everybody is stressed. Our pace of life is very fast. Our pace of life is very hard on us. And where the social media debates are happening, whether people should work 70 hours or 90 hours. I don't want to join issue with that. But we, Robert Frost की पुरानी कविता है, what is this life if full of care? We have no time to stand and stare. So we should actually try to find ways of de-stressing. Physical activity is a very good way. Physical activity is a very good way Yes. of, wherein especially organized physical activity, those who play games, it is good. Especially leisurely physical activity is very good. Okay. But because we are at physical activity, I'll touch one point very briefly, and that is, please remember, competitive athletes and those who pursue competitive sports need to be careful about their hearts. Okay. So, even in 500 BC, there was a guy called Philippides who ran from Marathon to Athens, or aaj bhi Marathon is named after him. He reached and he dropped dead. So, please understand, I know that this morning, I think there was a big marathon race in the city. It is good to encourage leisurely sports. But when it comes to competitive sports, Yeah. competitive making a point, athletes don't live longer. Okay. Don't live longer. So therefore, I come back to Gautam Buddha and I say the middle path is the best path, because engage in it. It is a good physical activity. It is a good mental relaxation. It helps you improve your metabolism. It controls your weight. It makes you look happier about yourself. You look more attractive. So you walk 10 feet tall. You're happy. And it also makes you happy. The endorphins are released, it makes you happy. But when it comes to, some people come to us and say, okay, patients come and say, I have to do this much. I have to lift weight. And then we have to try and tell them, please slow down. And whatever you're doing, do it under a supervision. And purani kahavat hai na, akal badi ke bhains. So it should be done in understanding your own body. Correct. That's important. So आज के टाइम पे we all know कि हम लोग इतना processed food consume कर रहे हैं, and that is a major source of fats. Trans fats. Yeah. But at least it is written there कि आपके FSAI का जो documentation है, लिखा तो हुआ है क्या है. But हम also देखिए, कोविड पेंडेमिक के दौरान हम सबको जो अपने पैलेट को सेटिस्फैक्शन करना था, from food delivery, from these poor boys and girls who delivered food from various places, सबसे पॉपुलर तो अब भी हिंदुस्तानी हलवाई है, who may be called a different name, and that food contains a lot of trans fats. So processed foods, at least you should be careful. याद रखें, जो भी मीठा भी हो, अगर वो processed है, it may contain a lot of
brine or salt. So it increases blood pressure. It may contain a lot of fats, binding agents भी होते हैं, so it can increase your cholesterol. So one has to be careful about what is processed, limit it. जितना natural लेंगे, एक simple formula है. Whatever is colored in nature and not pulpy is probably good for you. Whatever is colored in nature, colored, okay, and maybe local to your place of origin. okay, So and not pulpy is probably good for you. नॉट पल्पी मैंने इसलिए कहा क्योंकि आम के सीज़न में आके लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं एक किलो आम रोज़ का खाती हूँ तो मेरा शुगर पता नहीं क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है. नाउ दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. सो दैट इज़ व्हाई आई मेड श्योर पल्प हटा दिया. सो इट्स नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट द किंग ऑफ फ्रूट व्हिच इज़ मैंगोज बट ऑल द सेम. तो अभी जो हमारे मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो जाके कुछ फूड प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और उसमें जो लेबल्स होते हैं, सो लाइक उसमें क्या वो इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं और चूज कर सकते हैं? They should look for trans fats. They should look for salt content, sodium content. देखिए in China 2 years ago there was a study called the SAS study. और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी था. उन्होंने एक प्रोविंस में सॉल्ट चेंज कर दिया, उसमें सोडियम लो सोडियम सॉल्ट दिया, and the blood pressure incidence fell, and they felt that they have saved so many people from dying prematurely. Okay. So we need to be conscious about our salt intake. We need to be conscious about our total calorie intake. We need to be conscious about our fat intake. हालांकि हम कहते हैं कि fat overwhelm कब होता है system. So definitely we should try and make sure that हम जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो कम रखें ताकि हमारी systems भी उसको ठीक तरह से प्रोसेस कर सके. करेक्ट, यस. सो नाउ कमिंग टू द स्क्रीनिंग पार्ट ऑफ इट, यूजुअली जो हमारे लिपिड्स टेस्टिंग होती है उसमें बोला जाता है कि 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स की फास्टिंग इम्पॉर्टेंट है तो ही आपके वैल्यूज़ जेन्युइन है. इज इट ट्रू? एक्चुअली बहुत कंटेंशियस पॉइंट आपने बोला है. कंटेंशियस इसलिए है क्योंकि बहुत जगह लोग LDL कोलेस्ट्रॉल की एस्टिमेशन करते हैं एज ए डिराइव्ड नंबर. देखिए जब हम खाना खाते हैं तो हमारी ग्लूकोज बढ़ती है, इंसुलिन बढ़ती है उसको कम करने के लिए. तो ट्राइग्लिसराइड्स का एस्टिमेशन पोस्ट प्रेंडियली खाने के बाद हमेशा गलत हो सकता है, बिकॉज सीरम लाइपीमिक हो सकती है, जो सीरम में भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं. तो इससे हमारी LDL एस्टिमेशन, अगर वो डिराइव्ड LDL एस्टिमेशन है by a formula total cholesterol minus triglyceride divided by 5, तो वो गलत हो सकती है. Okay. तो जो यूनिकली अब मोस्ट लैब्स आर इनकरेज्ड कि वो डायरेक्ट LDL एस्टिमेशन करें. सो देयर इज अ लॉट ऑफ resistance to this fasting, and we can probably rely even on non-fasting samples, which is what the European Society guidelines for the last few years have been saying. But in India, the Indian atherogenic dyslipidemia does not have that high an LDL, although we give LDL importance, but the importance is also the triglycerides. So what we suggest still is that we do observe a reasonable fast before we get an lipid profile done. And if we get a very lipemic serum and if the triglycerides are high, then we should repeat it with a proper fasting condition. देखिए आप अगर फास्टिंग करेंगे भी तो अंडरस्टैंड करिए कि जो एब्जॉर्प्शन फैट्स की होती है वो पेट से नहीं होती, वो होती है लार्ज गट से, और उसको पहुंचते ही 8-10 घंटे लग जाते हैं. तो इसलिए इतना फ़र्क शायद नहीं पड़े, बट देयर विल बी अ फ्यू थिंग्स जो कि इमीडिएटली बढ़ेंगी और ट्राइग्लिसराइड्स का इम्पैक्ट बहुत होता है. तो इसलिए हम इसको मद्देनज़र रख के अपना डिसीजन ले सकते हैं. मैंने आप कहेंगे कि डायरेक्ट आंसर नहीं दिया. बाय गाइडलाइन रिकमेंडेशन यू डोंट हैव टू हैव अ फास्टिंग सैंपल, बट देयर आर चैलेंजेस इन इंडिया, उससे मैंने आपको अवगत कराया. राइट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये 6 months में एक बार या ईयरली एक बार कराना रिकमेंडेड है? देखिए हम रिकमेंड करते हैं कि इन स्कूल लेवल दे शुड बी एटलीस्ट once in 2 years or once a year. एक बार जिंदगी में lipoprotein little a का estimation हो जाए, especially in people who have strong family history. Because the other day I had a patient, twins were referred to me,
and they had a very strong family history. They lost many uncles in their 30s and 40s, and their cholesterols were sky high, and Age? they were 28 and 26, and they have what is called familial hypercholesterolemia. And when I looked at their lipoprotein little a, it was more than 500. I had never seen such high lipoprotein little a's. So I immediately said that, you are now at extreme high risk, and we need to work very aggressively on you. And like you said, that they said कि हमें तो कोई symptom नहीं है. As a, the first symptom can actually be can be the end. So therefore one has to be very, very careful. And this is where we also do a lot of other things, like there is the role of stress testing is a little contentious. Some countries have given it up. Some people are doing population screening by doing what is called a calcium score on CT scan. But in a country like ours, we cannot implement it because we have a huge population. Yes. But when required, when in a high-risk situation, doing that or doing a CT coronary angiogram actually is useful. We still use a lot of treadmill, although यूनाइटेड किंगडम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सेलेंस जो है, उन्होंने ट्रेडमिल को अपने स्टेप वाइज एल्गोरिदम से हटा दिया है. बट सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारे लिए अभी भी it is relevant for us. So in such cases, frequent cholesterol checkups होना ज़रूरी है. नहीं, then we मतलब समय अनुसार उचित उपचार, तो उपचार के अनुसार आपको आगे का व्यवहार, मतलब it is like this. It has to be holistic treatment. Yes. It has to be holistic treatment, and that is what we offer. And today we have fantastic new drugs. We have drugs which can actually bring the cholesterol down dramatically. जैसे मैंने आपको बताया था ना, LDL रिसेप्टर पे वो काम करते हैं, या LDL रिसेप्टर की ब्रेकडाउन तोड़ देते हैं, या स्मॉल इंटरफेयरिंग RNAs करके LDL रिसेप्टर्स को ज़्यादा पावरफुल कर देते हैं, ताकि उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंप्रूव होती है. सो वी हैव such good agents which are today available, right. And unfortunately they are still a little expensive, but these have been game changers because right. These have been at least they give us an opportunity to do something for people जिसमें हमें पहले opportunity थी ही नहीं. right. और हम देखिए स्टैटिन्स को भी बहुत लोग विलीफाई करते हैं कि आप बोलेंगे स्टैटिन्स क्यों नहीं लेना, बोलते हैं जी मसल पेन्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं. Yes, we don't deny it कि नहीं होते, but everybody doesn't get it. और जिस तरह के एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना, जैसे वो मीठी गोलियां खा के लोग इम्प्रूव हो जाते हैं, वैसे एक नोसीबो इफेक्ट भी होता है कि आप ये दवाई लेंगे तो आपको वो सिम्टम्स जो आपको सोशल मीडिया में पता चला वो पता वैसे शुरू हो जाता है. बट टुडेज न्यू मेडिसिन्स आर एंड द प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन इज बीन वेरी गुड. एंड अनफॉर्चुनेटली एक मैं आपको बताता हूँ कि आज तक किसी डॉक्टर को आके ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की और मेरी जान अभी तक बची हुई है. अगर किसी को हार्ट अटैक होता है और हम उसकी नाड़ी खोल देते हैं, आगे थैंक यू भी बोलते हैं, बट ये नहीं बोलते जब कि हमने जो उनको सलाह दी है, या जो उनको इलाज किया है, या जो उनको मेडिसिन सजेस्ट की है, उनको लेने से 10, 15, 20, 25, 30 साल उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, वो कभी कोई नहीं कहता. तो ये जो आपका एक इशू था, दैट इज़ वाई दिस रिक्वायर्स governmental assistance and it requires public education. That is what we are. Yeah, that is why mediums like yours are here to disseminate this knowledge, ताकि लोग समझें कि what is important for them and how if they act in time they can prevent disasters from That's happening. right. You don't need to wait for a disaster for That's right. you to. Early prevention is saving. Absolutely. So, lastly, any takeaway message that you want to give to our viewers? I think we've given a lot of takeaway messages, but one key. One message. key, I would 100% say that maybe you can use the same formula, like I said, uchit ahar, uchit vyavhar, जिसमें please make sure no tobacco in any form, uchit vichar, stay stress free.
We are the world. We have given the world yoga. We have given the world meditation. Why can't we practice it on ourselves? Yes. You know, why can't we do it? Why are we only theoretically posturing that we can teach everybody else? We Right. should. Right. And समय अनुसार उचित उपचार एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स और समाज के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, हाँ. एक क्रेडिबिलिटी गैप आ गया. Yes. We need to make them understand. The first question you asked me, it kind of nonplussed me. Why did I become a doctor? And I think this is why people need to understand that people who became doctors did it because they wanted to decrease the suffering of humanity. They wanted to help people. There are many ways of making money. I mean, there are many ways of surviving in this world. But they chose this as 16, 17-year-old boys and girls because they wanted to help people. And I think that is unique to every physician, that he wants or she wants to help people avoid disease, and if there is disease, to recognize it and to treat it in time. So one common myth about cholesterol you would like to burst. There are many myths about cholesterol, I think, that we have kind of demolished. But one thing which is very clear, which I want everybody to take home, is that only 15 to 20% of the cholesterol that you have comes from your diet. You don't have to be gluttons in order to have high cholesterol. Having said that, we should not overwhelm our system by taking excess amounts of fatty food, because if nothing else, it will also count for more calories and will lead to weight gain. So this is the first and foremost myth which is in the public that we should try to avoid. Okay. Next one is good lipids or bad lipids. Which one gets more attention? So truly, I probably think we answered this during the conversation, but the concept about the good lipids, which was called the HDL, has not reached any finality, except to say that the quality matters more than the quantity. The bad cholesterol, or the LDL, has been the focus of our attention and will get the attention it deserves. We also recognize certain amplifiers of its action, which are like lipoprotein little a. So therefore, in a few years, we would probably be measuring the oxidized LDL, LDL particle, lipoprotein little a, rather than going for this LDL, HDL classification. Okay. Next one word you would always recommend for heart health. One food. One food you would always recommend for heart health. I don't think there is any such food which decreases heart disease. I think it's all about being optimal and uchit ahar, uchit vyavhar, uchit vichar, समय अनुसार उचित उपचार, तो शायद नहीं पड़ेंगे बीमार. But there are many things which we would try to avoid, and think foods which contain a lot of trans fats, दोबारा तले तेल का खाना, red meats, things which you know are being cooked in brine, or which contain a lot of salt or sugar, are to be avoided. Next question, one lifestyle change that has the biggest impact on lipids. I don't think there is any one lifestyle change which is going to have big impact on lipids. I think it has got to be a mixture of everything. These problems are also known by the company they keep. So for example, and they normally come together. So if you can control your sugars, you can control your blood pressure, you can control your lipids, you can stop smoking, you're going to be in a better place. Please understand that even for diabetics, 70% of risk reduction, risk of heart disease, happens by non-glycemic control, which means that the sugar control is only responsible for 30% of the benefit. But if you control the cholesterol, if you control the blood pressure, if you can make sure a person is physically active, normal weight, people will decrease risk. Right. Next one thing people always get wrong about fats and cholesterol. Fats and cholesterol are not synonymous. Everybody who's fat does not necessarily have high cholesterol. Everybody who has high cholesterol does not necessarily be fat. So
being obese has its own challenges. It is an independent risk factor. Having cholesterol is an independent risk factor. One small thing which I would like to add here is that people get very much perturbed that they might get dementia, cognitive dysfunction, or things like that if they take statins or cholesterol lowering agents for a long, long time. Now, this has been studied in great detail, and even lowering your LDL cholesterol to 25 does not cause cognitive dysfunction. I repeat, this is again a very important myth which we need to break. It does not cause any cognitive dysfunction. And also remember, when we are born, the cord blood contains only 25 milligram of cholesterol, of LDL cholesterol, 25 milligram percent of LDL cholesterol, which means that if that was good enough to synthesize our brain, then living with 25 should be good enough for us to live. True. Next, last one. If you had to sum up lipid management in one word, what it would be? I think I've repeated this too often. It is uchit ahar, Yes. uchit vyavhar, उचित विचार, समय अनुसार उचित उपचार, तो शायद नहीं पड़ेंगे हम बीमार. Thank you so much. Oh, it's been a pleasure being here on your show, ma'am. जैसे कि हमने देखा, लिपिड सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि वो हमारे लाइफस्टाइल का एक रिफ्लेक्शन है. राइट डाइट, एक्सरसाइज और रेगुलर चेकअप से हम हमारे लिपिड्स को कंट्रोल में रख सकते हैं और अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं. इफ यू फाइंड आवर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन Instagram @Mankind Specialities for more such insightful discussion on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.